This conference will now be recorded. ओके गाइस, अभी मैं अपना AWS कंसोल लॉगिन कर रहा हूँ. आई होप कि यू ऑल अवेयर ऑफ इट, राइट? So we are aware. सॉरी. We are aware of the console, AWS console. MFA code. Anyone know about MFA? MFA basically multi-factor authentications. In today's world, we have to do this because hacker easily hack our desktop and laptop and our all IT resources easily. Multi-factor authentication is important for this. So today we are discussing AWS VPC, uh, concept of networking, basic concept of networking. मैं आपको MS Paint में ड्रॉ करके दिखाता हूँ. Sir, Yes. your screen is not visible. Sorry. Actually, MS Paint नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट? अभी आपको कंसोल दिख रहा है? No, sir. अभी आपको AWS डैशबोर्ड दिख रहा है आपको? Yes, Sir, sir. it's complete. No, sir. So now it's visible. Okay, thank you. So is it visible to you? Yes, sir. It's visible. So we have a coffee shop, right? Okay, अभी आप देख रहे हो पहले मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा, फिर मैं आपको लैब करूंगा, ठीक है? लैब करवाऊंगा उसमें इंस्टेंस में, मतलब हम AWS कंसोल में एक EC2 बना के उसका लैब करेंगे. सबसे पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉफ़ी शॉप है. ये एक कॉफ़ी शॉप है. जिसमें यहाँ पे एक कैशियर बैठा हुआ है जो कि कस्टमर के साथ डील कर रहा है.
और एक यहाँ पे शेफ या कुछ भी रेस्टोरेंट में आप शेफ होता है तो आप कुछ भी लगा के चल सकते हैं। यहाँ पे शेफ है। The drawing screen is not visible, sir. We are just seeing the console only. But Screen was was here is visible. showing sharing. Who cannot see? It shows sharing on my end. I think I'm connected with two devices. Let me check my phone. Drawing is not visual. Okay. Okay, let me draw online. Let's try online drawing. Online draw. गाइस अभी ठीक है? रिस्पॉन्स करो यार। Yes, sir. It's visible. ओके। सो यार ये एक कॉफ़ी शॉप है और मैं क्या बता रहा था कि इसमें एक तो कैशियर होता है जो हमें कॉफ़ी डिलीवर करता है कस्टमर को, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। और एक है शेफ जो कॉफ़ी बना रहा है अंदर, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी इस कॉफ़ी शॉप के अंदर एक अपना नेटवर्क है। वैसे ही हमारे सर्वर के अंदर सेम सिनेरियो में सर्वर को जो वेबसाइट हमने सर्वर के ऊपर अपलोड कर रखी है, मैं एक सेकंड इसको लेवल कर देता हूँ कौन सा क्या रोल है। कैशियर Hello. जी जी बोलिए बोलिए। Yeah, can you explain in English? Some of my friends are they are not able to accept any Hindi, but they don't know about that machine thing. नो नॉट Just एन try to इशू, explain in नॉट एन English. इशू। श्योर। Yeah, okay. व्हाट इज योर गुड नेम? Guys, this is a coffee shop model, right? Basically, I'm trying to teach you the concept of VPC and concept of networking. This is a cash counter and this is visible to all public. Anyone can access here and pay here and take their coffee and anything like we can purchase at restaurant.
but this thing, this is chef who manufacture or who produce that thing. This is not visible to public, right? In network, we also have public and private scenario. किसी anyone want to ask something? Anything? Is it understandable to you guys? You can ask me if you want. Sir, it is understandable both Hindi and English. Sorry, Sir, it's understandable, sir. not about What you try? language. The concept I am drawing here. Is Yeah, it yeah, I okay understand, with sir. you guys? Yes, sir. Basically, I just try to understand about the private and public concept. How can we divide the resources on our server? एक बीपीसी जो है वो हमें हेल्प करता है कि कैसे हम अपने सर्वर को जो है वो रिसोर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। वो हमारे जो सबनेट हैं वो प्रोवाइड करता है हमें प्राइवेट नेटवर्क के, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क तो बीपीसी प्रोवाइड नहीं करता है। बीपीसी प्राइवेट आईपी और सबनेट प्रोवाइड करवाता है हमें। पब्लिक तो हमें सर्विस प्रोवाइडर ही देगा जो भी होगा। प्राइवेट कोई कोई किसी का क्वेश्चन? आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे यार, शायद आपको सब आता है। Yeah, hello. जी। May I know the requirements of the networks? Networks. This is Requirements of the actually a network. backbone. This is basically a backbone. Whenever public need to access the resource of this shop or this network or this server, they have to come by this way, and this way is called network. Anyone else? थैंक यू भाई पूछने के लिए। पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? इससे भी ज़्यादा ब्रीफ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें नई शीट आ सकती है। इसको सर्वर वाले सिनेरियो में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका वेब सर्वर है और ये आपका डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर को हम
पब्लिक आईपी नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसको तो पब्लिक एक्सेस थोड़ी करेगी। पब्लिक तो सिर्फ हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगी। आगे वेबसाइट जो है, then website need to access this database and this database will be private. Okay guys, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बेसिकली हमें एक इन्वायरमेंट देता है क्रिएट करके, प्राइवेट इन्वायरमेंट, प्राइवेट क्लाउड। लेट्स डू दिस, करके देखते हैं अभी हम एक इंस्टेंस पे, ठीक है, VPC बना के देखते हैं। आप लाइन पे ही हो ना, कोई कुछ पूछ नहीं रहा? अभी एक बंदे ने पूछा था सिर्फ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क। Sir, I have a doubt, sir. प्लीज। Sir, based on the scenario what you have explained on that coffee shop regarding, what I have understood that we cannot directly access to the private network, but we can access through the public website, or we can access through that private network, right? इस सिनेरियो में देखो, कैन वी स्पीक इन हिंदी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो जैसे ये जो सिनेरियो है, इसमें मैंने वेब सर्वर को एक पब्लिक आईपी दिया हुआ है और एक एक डाटाबेस सर्वर को मैंने प्राइवेट आईपी दिया हुआ है। वेट, मैं यहाँ पे आईपी लिख रहा हूँ। प्राइवेट आईपी जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो हमारा VPC, ये जो VPC है ये प्रोवाइड करवा रहा है। अभी अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ये देखिए नेटवर्किंग सेटिंग्स, जब हम कोई EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे नेटवर्किंग सेटिंग्स है, इसमें ऑलरेडी VPC का नाम दे रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट VPC है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट VPC होता है, आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें VPC आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो VPC है। उसके बाद सबनेट। एनीवन नो अबाउट द सबनेट?
by we using subnet. No one know? सबनेटिंग नहीं सुना कभी? ओके एनीवे, जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमें नेटवर्किंग करनी होती है तो हमारे पास जो नेटवर्क के आईपीज होते हैं, यार इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके करने पड़ेंगे। सबनेटिंग बेसिकली हम बड़े नेटवर्क में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें आईपीज की ज़्यादा आईपी की ज़रूरत होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज की आईपी की। अभी के लिए हम सबनेटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला। अब आगे बोला है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी का पता है? प्राइवेट आईपी तो मैंने बताया, ये हमने इसको दे दिया। पब्लिक आईपी का पता है किसी को? Yes, sir. पब्लिक आईपी जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो, या फिर यहाँ पे AWS के केस में AWS खुद प्रोवाइड करता है। ये भी आगे किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेता होगा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है। और अभी जो हम इनेबल कर देंगे तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक आईपी, जिसे हम इलास्टिक आईपी भी बोलते हैं, वो असाइन कर देगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता है। यदि हमने खुद का कहीं सर्वर आपने ऑन प्रेमिसेस में इंस्टॉल करना है तो हमें वो खरीदना पड़ता है, पब्लिक आईपी। ये यूनिक होता है। तो ये पब्लिकली एक्सेस होता है, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? Sir, small doubts, sir, not a question. सॉरी, In क्या outside बोल रहे हो? world, sir, one small doubt, sir. जोर से On बोलिए, private, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। I have doubt on IPs, sir, public IPs. हाँ, So in outside world, we have some public IPs, sir. In AWS, sir, we have few IPs. The if उपेंद्र anyone प्लीज using, आप अपना मैसेज चैट में लिखिए आप, ठीक है? okay, sir. फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो मैं उसको चेक करना चाहता हूँ, तो ये मैं लिखूँगा माई आईपी, तो ये मेरा आईपी दिखा देगा। ये मेरा पब्लिक आईपी दिखा रहा है, ये जियो का। ये लेकिन ये किसी और फॉर्म में आ रहा है ड्यू टू एन रीज़न। ऐसे हम किसी भी डिवाइस पे जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, उस डिवाइस का आईपी जो है, हेलो, Yes, sir, please. लिखा आपने क्वेश्चन अपना उपेंद्र? Sir, my question is simple. If public IP we are using on public IP, sir, same IP will repeat in यस यस AWS, or यस, पब्लिक आईपी बेसिकली इज इंटरनेट। sir, not at all. The same IP जो will भी repeated जो in भी कंप्यूटर AWS, or इंटरनेट के साथ जुड़ा है वो पब्लिक आईपी की हेल्प से जुड़ा हुआ है। yes, sir. But my question was this, sir. If using one IP, sir, that IP will repeated in AWS, or not? If you using, रिपीट sir, am I use कर रहे रिपीटेड हैं मीन, repeat if this IP is existing on AWS, or it is removed in AWS if you use on public IP and outside world. basically when we will create this VPC or instance, AWS provide us a IP by default, I, but whenever we will stop this instance, for instance like
today we will stop this instance for some reason, then we will start this instance by tomorrow. Then AWS provide us any other IP, because these are paid service actually. So they assign one time only, not for permanent to you on your instance. Got my point? Yes, sir. आप हिंदी में पूछ सकते हैं यदि आपको क्लियरिटी नहीं मिली है आपके क्वेश्चन की तो। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, AWS में कुछ आईपीस रहते हैं ना सर, आउटसाइड वर्ल्ड भी कुछ पब्लिक आईपीस रहते हैं क्या बोल रहे हो? सर. फॉर एग्जांपल 203.1.1. I having this IP, for example. In AWS, same IP will repeat in AWS, or if you using outside world IPs are That does internally not they matter. That does not matter what AWS provide and what you are setting, right? For Yes, sir. example, you set up IP like this for your network, for your VPC, Yes, sir. and AWS provide you public IP like this. Yes, sir. They can't, but like this, for example. Okay, sir. तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि दोनों एक जैसे होंगे, तो ऐसा पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हैं आप इंदर जी? आप प्लीज एक बार क्लियर करिए। Sir, my doubt is only one thing, sir. Internally, AWS have some public IP list, sir. How manage? Sir, in AWS they have public IP list, sir. That IPs are outside world, they outside of the AWS in internet we have some public IP, sir. Yes. Outside the world, if anyone use some IP, that IP will exist in AWS IP list or remove in Don't IP. worry about that. Don't worry about that. That is not your headache. AWS will handle this. Okay. मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा, पहले हमारा ये इंस्टेंस बन जाए एक बार, उसके बाद आपका पब्लिक आईपी वाला डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये यूनिक होते हैं, पूरी दुनिया में यूनिक होगा, ये जो आपको असाइन होगा वो किसी और को असाइन नहीं होगा पूरी दुनिया में। ओके सर, ठीक है। सो मैंने इनेबल कर दिया है। यदि मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो वो कोई भी पब्लिक आईपी उसको असाइन नहीं करेगा, और पब्लिकली हमारा जो इंस्टेंस है, जो बीपीसी है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। ये भी नहीं रहेगा, ये अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि उसको पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं करेगा कोई भी। इज इट ओके सर? यस सर। हाँ, थैंक यू। उसके बाद है फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स। फायरवॉल जो AWS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप है कि किसको एक्सेसिबल हो और किसको नहीं हो। नेटवर्किंग के पार्ट में ये नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है, इसमें किस किस प्रोटोकॉल को हमारा जो है शॉप या इंस्टेंस बोल सकते हैं, ये एक्सेसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है, इसको मैं रेड करता हूँ यार। अब इस सर्वर के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो वो कौन सा प्रोटोकॉल हो, कौन जा सके और कौन आ सके। अब फॉर एग्जांपल आपने facebook.com लिखा है, तो facebook.com की एक रिक्वेस्ट भेजी है आपने ब्राउज़र से इस आईपी के अंदर, तो वो जाएगी 80, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो HTTP, ये देखिए ना, यहाँ पे हम लिखते हैं जो ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आता है HTTPS। ये HTTPS आ रहा है और HTTP, ये दो प्रोटोकॉल पे चलता है।
HTTPS तो अभी आया सिक्योर, लेकिन पहले जो था ये सिक्योर शेल होती है एक्चुअली। पहले HTTP ही कॉमनली यूज़ होता था। ये ड्यू टू सिक्योरिटी के रीज़न के ये हमारा नया प्रोटोकॉल आया जिसमें हम SSL लगाते हैं तो ये अपडेट होता है। तो अभी के लिए हमने जैसे इनेबल कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने HTTP इनेबल कर दिया तो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगी, और ये है आउटगोइंग के लिए। तो आउटगोइंग के लिए कि क्या क्या आपका जो नेटवर्क है उसे बाहर रिक्वेस्ट जाए या ना जाए, उन सब चीज़ों के लिए ये AWS की फायरवॉल पे इसको इनेबल करना पड़ता है सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाके। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है SSH इनेबल की हुई है इसने बाय डिफ़ॉल्ट। ये एनीवेयर है कि आप कहीं भी रिक्वेस्ट कर सकते हो सर्वर के अंदर से। सो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ HTTP। किसी को कुछ पूछना है प्लीज़? The screen was frozen, sir. ओ यार सॉरी, मेरा लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। गाइस मुझे नहीं लगता कि मैं सेशन ले पाऊंगा यार, सॉरी, क्योंकि मेरा लैपटॉप बैटरी डाउन है और मेरे पास लाइट भी नहीं है यहाँ पे। Sir, tomorrow morning 6 or 7 o'clock you conduct the session. All agree on this, guys? I can conduct. I have no problem with this. If you Sir, all okay, sir. agree. Tomorrow morning 7 o'clock. आपके अकेले के बिहाफ पे नहीं कर सकता ना ये मैं। Please reply on this. Who agree? Or come. गाइज मैंने इंस्टांस जो है वो लॉन्च कर दिया है, और मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, और यदि मैं फ़ोन से लूँगा तो फ़ोन से आई थिंक इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके ही बेटर अंडरस्टैंड हो सकता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो ये अभी टुमारो के लिए बोल रहे हैं, तो व्हाट टाइम इज सुटेबल टू यू गाइस? 7 PM tomorrow. Okay, this is okay to me. सेवन AM तो जल्दी हो जाएगा यार, इतना सुबह सुबह तो मुझे नहीं लगता कोई उठेगा। मैं आपको ना ये नोट एग्री वर्षा। वर्षा जी, आपको यदि कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ पूछिए, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं फ़ोन पे सेशन ले सकता हूँ, बताइए।
7 p.m. Tomorrow 7 p.m. Is it okay? Final call. कल हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक तो समझ आ रहा है सर। एक्चुअली अभी हमने एक इंस्टेंस बनाया है और उसके ऊपर हमने बीपीसी बनाया है, ठीक है। कल इसके साथ साथ हम एक और इंस्टेंस बनाएंगे। अभी जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, कल हमें इसमें क्या करेंगे, कल हम बीपीसी के साथ बीपीसी पेयरिंग 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। आज का जो रहता है वो हम कल कवर करके बीपीसी प्लस बीपीसी पेयरिंग कवर करेंगे। गाइस सॉरी, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे आज बारिश बहुत थी, तो लाइट है नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू दैट मैं आपका सेशन भी नहीं ले पाया ढंग से, और मेरे इसमें लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है अभी। फ़ोन में तो चलो है, लेकिन फ़ोन से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता नहीं पाऊँगा। मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ जो मैंने ब्लॉग बनाया था, इसका थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना। इसमें कुछ आपको पूछना होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, या फिर इसमें मेरी आईडी आ रही होगी, उस पर आप डाल सकते हैं रिक्वेस्ट। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस। ओके गाइस, अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सबके पास AWS का कंसोल है? आपके सबके पास AWS का एक्सेस है? बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको इतना समझ नहीं आएगा। Sir, जी sir, can you please share the day before yesterday recorded video? It's not sent to me.